پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک سرسبز اور خوشحال ریاست جس کا نام کابلستان تھا اپنی امن اور انصاف کی مثالوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ یہاں کے نیک دل اور دانشمند بادشاہ قاسم اپنی رعایا میں بے انتہا مقبول تھے۔ ان کی حکومت عدل اور انصاف کی علامت سمجھی جاتی تھی اور ان کے فیصلے ہمیشہ نڈر، غیر جانبدار اور حق پر مبنی ہوتے۔ شہر کی ہر گلی کوچے میں ان کی دانائی کے قصے سنائے جاتے اور عوام انہیں اپنا نجات دہندہ تصور کرتے تھے۔ بادشاہ قاسم کی یہ روایت تھی کہ وہ روزانہ دربار لگاتے جہاں ہر عام اور خاص، چاہے وہ امیر ہو یا مفلس، بنا جھجک اپنے مسئلے بیان کر سکتا تھا۔ ایک دن ایک بدحال کسان روتا ہوا دربار میں حاضر ہوا۔ اس کی زمین پر ایک ظالم سردار نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ بادشاہ نے فوراً اس سردار کو طلب کیا اور انصاف کے ترازو میں بنا کسی خوف یا دباؤ کے فیصلہ سنایا۔ کسان کو اس کی زمین واپس دلائی گئی اور ظلم کرنے والے سردار کو سخت سزا دی گئی۔ اس عدل اور انصاف کے بعد رعایا کا اعتماد اور بڑھ گیا اور لوگ کہنے لگے کہ جب تک قاسم کی تلوار حق موجود ہے، کابلستان میں کوئی ظالم نہیں پنپ سکتا۔ بادشاہ قاسم کی محبت اپنی رعایا کے لیے بے لوث تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے عوام کی خوشیوں میں شریک ہوتے اور ان کی فلاح اور بہبودی کے لیے نئے نئے اقدامات کرتے۔ انہی کوششوں میں سے ایک روایت یہ تھی کہ ہر ہفتے شاہی محل میں ایک عظیم الشان دعوت کا انتظام کیا جاتا، جہاں کسی کو بھی شرکت سے نہیں روکا جاتا تھا۔ اس محفل میں انواع و اقسام کے کھانے پیش کیے جاتے، میٹھے پکوانوں کی مہک فضا میں بکھرتی اور شاہی باغات خوشبو اور روشنیوں سے جگمگا اٹھتے۔ ساجندے دلکش دھنیں چھیڑتے اور ہر شخص بادشاہ کے حسن سلوک کا دل کھول کر چرچا کرتا۔ ایک رات جب محفل شباب پر تھی اور لوگ خوشی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، بادشاہ قاسم نے ایک منفرد اعلان کیا۔ وہ اپنے تخت سے اٹھے، اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں بولے، آج میں تم سب کے ساتھ ایک دلچسپ کھیل کھیلنا چاہتا ہوں۔ چاروں طرف حیرت اور تجسس کی لہر دوڑ گئی اور سبھی اپنی توجہ بادشاہ کی طرف مرکوز کر بیٹھے۔ بادشاہ نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر کہنے لگے، جو بھی مجھے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہوگا، میں اسے 10,000 سونے کی اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ یہ اعلان سنتے ہی دربار میں جیسے طوفان آ گیا۔ چاروں طرف سرگوشیاں ہونے لگیں، کچھ حیران تھے تو کچھ جوش سے بھرے ہوئے کہ آخر بادشاہ کو بے وقوف بنانے کی ہمت کون کرے گا۔ 10,000 اشرفیوں کا انعام کسی معمولی چیز کا نام نہیں تھا، یہ زندگی بدل دینے والی رقم تھی۔ ہر شخص اپنی چالاکی آزمانے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ دربار میں روز نئے چالاک لوگ آتے، کوئی حیرت انگیز پہیلیاں پیش کرتا، کوئی الفاظوں کے جال بچھانے کی کوشش کرتا تو کوئی ایسی داستان سناتا جو حقیقت اور فریب کے بیچ معلق ہوتی۔ لیکن بادشاہ قاسم بے حد دانا اور حاضر جواب تھے۔ وہ ہر چال کو بھانپ لیتے، ہر مکاری کو پہچان لیتے اور مسکراتے ہوئے کہتے، بہت عمدہ، لیکن میں اب بھی بے وقوف نہیں بنا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، لیکن کوئی بھی اسے چکما نہ دے سکا۔ قاسم اس کھیل سے اوب چکا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا واقعی دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو اسے دھوکہ دے سکے۔ محل سے باہر رعایا میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگوں نے بادشاہ کو ناقابل شکست قرار دے دیا، جبکہ کچھ کا ماننا تھا کہ وہ شخص ابھی تک نہیں آیا جو اس چنوتی کو جیت سکے۔ لیکن بادشاہ خود اس سوال کا جواب تلاش کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ چنوتی جاری رہے گی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایک اجنبی اس کے دربار میں آ کر سب کچھ بدل دے گا۔ ادھر ایک دور دراز کے علاقے میں زید نام کا ایک نوجوان سفر کر رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور رات کی تاریکی میں راستہ طے کرنا خطرناک ہو سکتا تھا، اسی لیے وہ قریب ہی کے ایک شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر کے دروازے پر پہنچ کر زید نے ایک عمر دراز شخص سے پوچھا، جناب، میں ایک مسافر ہوں، کیا یہاں رات گزارنے کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ بزرگ نے نرمی سے جواب دیا، ہاں بیٹا، ہمارے یہاں ایک مسافر خانہ ہے، تم وہاں قیام کر سکتے ہو۔ زید نے شکریہ ادا کیا اور مسافر خانے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں پہلے سے 2 آدمی بیٹھے سرگوشیوں میں مشروف تھے۔ ان کے چہروں پر جوش اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ زید نے ان کی گفتگو پر دھیان دیا۔ ایک شخص پرجوش لہجے میں کہہ رہا تھا، کیا تم نے سنا؟ بادشاہ قاسم نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی اسے بے وقوف بنائے گا اسے 10,000 سونے کی اشرفیاں دی جائیں گی۔ دوسرا آدمی حیرت سے بولا، ہاں،
लेकिन अब तक कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सका। हर किसी ने कोशिश की, मगर बादशाह की अकल के सामने सब बेबस हो गए। ये सुनकर जैद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। उसने सोचा, यह तो दिलचस्प मामला है। सुबह होते ही मैं भी महल जाकर देखूंगा कि यह महज एक कहानी है या वाकई ऐसी कोई चुनौती मौजूद है। अगली सुबह जैद शाही महल की दहलीज पर पहुंचा, जहां एक शानदार ज़ियाफत का इंतजाम किया गया था। शहर के मुअज्जजीन और आम लोग एक साथ बादशाह के साथ खाने से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हर तरफ रोशनियों की झिलमिलाहट थी, दीवारें सुनहरी नक्काशी से मजीन और महल की फजाएं खुशबुओं से महक रही थीं। जैद भी मजमे में शामिल हो गया, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ बादशाह पर मरकूज थीं। बादशाह अपनी आलीशान मसनद पर विराजमान था और दरबारी उसके सामने मजाहिया हरकतें कर रहे थे ताकि उसे बेवकूफ बना सकें, मगर वह महज मुस्कुराकर उनके फन की दाद देता और फिर संजीदगी इख्तियार कर लेता। आज तक कोई ऐसा नहीं था जो बादशाह की दानाई को मात दे सकता। यह मंजर देखकर जैद के जहन में एक तदबीर आई। वह खामोशी से मुसाफिर खाने लौटा और खुद से कहने लगा, अगर मैं बादशाह के पास जाकर दावा करूं कि मैं काबुलिस्तान का शहरी हूं और मुझे 1000 सोने की अशरफियां दरकार हैं, तो बादशाह जरूर मुझे यह रकम दे देगा। जैसे ही वह मुझे अशरफियां देगा, मैं ऐलान कर दूंगा कि मैं हकीकत में काबुलिस्तान से नहीं, बल्कि एक आम मुसाफिर हूं। इस तरह मैं पहली बार बादशाह को धोखा देने वाला शख्स कहलाऊंगा और शर्त भी जीत जाऊंगा। जायद ने दिल ही दिल में अपनी जीत का तसव्वुर करते हुए फैसला कर लिया कि अगली सुबह वह बादशाह के दरबार में हाजिर होगा। अगली सुबह जैद पूरे एतमाद के साथ शाही दरबार में दाखिल हुआ। महल के बुलंद ओबाला सुतून और नफीस पर्दों के दरमियान चलते हुए वह अपनी चालाकी पर मुस्कुरा रहा था। दरबार में पहुंचकर उसने अदब से बादशाह कासिम को सलाम किया और नहायत आजिजी से बोला, बादशाह सलामत। मैं काबलिस्तान का एक बाशिंदा हूं और मुझे 1000 सोने की उशरफियां दरकार हैं। बादशाह ने गहरी नजरों से जैद को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम काबलिस्तान के शहरी नहीं, बल्कि एक आम मुसाफिर हो। तुम्हारा नाम जैद है और तुम पिछले 2 दिनों से मुसाफिर खाने में कयाम कर रहे हो। जैद की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसके चेहरे पर बेयकीनी के असर नुमायां हो गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कैसे मुमकिन है? बादशाह को यह सब कैसे मालूम हो सकता है? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। उसके जहन में बेशुमार ख्याल दौड़ने लगे। बादशाह कासिम ने उसकी उलझन भांप ली और नरमी से मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ नाम का ही नहीं, हिकमत का भी बादशाह हूं। मेरी सल्तनत में जो भी आता या जाता है, मुझे उसके बारे में सब मालूम होता है। तुम्हारा मंसूबा काबिले सिताइश था, मगर मुझसे जीतना इतना आसान नहीं। जैद ने चंद लम्हे सोचा, फिर एक चालाक मुस्कुराहट के साथ बोला, बादशाह सलामत। मैं मानता हूं कि आज मैं नाकाम रहा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन जरूर आपको बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। यह सुनकर बादशाह जोर से हंसा और बोला, बहुत खूब जैद, देखते हैं तुम कब और कैसे अपनी यह जिद पूरी करते हो। जैद ने बादशाह को अदब से सलाम किया और शाही महल से बाहर निकल आया, मगर उसका जहन लगातार इसी सोच में उलझा रहा कि आखिर ऐसा कौन सा तरीका हो जिससे वह बादशाह को धोखा दे सके। वो जानता था कि कासिम नहायत ज़हीन और अक्लमंद है, मगर उसके अंदर यह चुनौती जीतने का जुनून और ज्यादा बढ़ चुका था। मैं हार नहीं मानूंगा, उसने खुद से अज़्म किया। मगर वक्त गुजरता गया और कई दिन की कोशिशों के बावजूद वो किसी ऐसे हरबे तक ना पहुंच सका जो बादशाह को धोखा दे सके। आखिरकार एक दिन उसने अपना सामान उठाया और काबुलिस्तान छोड़ दिया। शायद वो किसी नए शहर की तरफ रवाना हो रहा था, या शायद उसने चुनौती को तर्क करने का फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ शाही महल में बादशाह कासिम किसी अजीब सी उदासी में मुब्तला था। वह तख्त पर बैठा सोच रहा था कि आज तक कोई भी उसे बेवकूफ नहीं बना सका। उसने उम्मीद की थी कि कोई न कोई जरूर आएगा जो उसकी चुनौती को पूरा करेगा, मगर ऐसा न हो सका। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने अपने वजीर से सवाल किया, क्या वाकई हमारे काबुलिस्तान में कोई ऐसा नहीं जो मेरी अक्ल को मात दे सके? वजीर ने अदब से सिर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत। आपकी दानाई और फहमो फिरासत के सामने किसी की चालाकी नहीं ठहरती। लोग आपकी जहानत से बखूबी वाकिफ हैं, इसीलिए कोई भी आपकी चुनौती को कबूल करने की जुर्रत नहीं करता। ये सुनकर बादशाह हल्का सा मुस्कुरा दिया।
शायद वह अपनी दानिशमंदी पर खुश था, या शायद वह अब भी किसी ऐसे शख्स का इंतजार कर रहा था जो उसकी चुनौती को जीत सके। इस वाकये को 1 साल गुजर गया, मगर अब तक कोई भी बादशाह को बेवकूफ बनाने में कामयाब न हो सका। बादशाह कासिम के दिल में कभी कभी यह ख्याल आता कि क्या वाकई कोई ऐसा शख्स नहीं जो उसे चालाकी में मात दे सके, मगर वक्त के साथ साथ वह इन ख्यालों को भुला चुका था। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया, मेरा शाही घोड़ा तैयार करो, मैं शिकार के लिए जाना चाहता हूं। वजीर ने तुरंत बेहतरीन नस्ल का शाही घोड़ा तैयार करवाया और बादशाह अपने खास सिपाहियों के साथ शिकार पर रवाना हो गया। कई दिनों तक वह घने जंगलों में शिकार करता रहा। हिरन, बाज और दूसरे जंगली जानवर उसके शिकार का निशाना बनते रहे, मगर लगातार सफर और शिकार की मशक्कत ने उसे निढाल कर दिया। वापसी के सफर में जब वह एक हरे भरे गांव के करीब पहुंचा तो उसने फैसला किया कि कुछ वक्त यही कयाम करे ताकि तरोताजगी महसूस कर सके। गांव के लोग बादशाह के इस्तकबाल के लिए जमा हो गए। वे निहायत सादे मगर मेहमान नवाज थे। जब बादशाह गांव में घूम रहा था तो चंद मकामी लोगों ने उसे बताया, बादशाह सलामत, हमारे गांव में एक निहायत दाना बुजुर्ग रहते हैं। लोग दूर दूर से उनके पास आते हैं क्योंकि उनकी दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। कहा जाता है कि वह हर इंसान की नीयत और दिल का हाल जान लेते हैं। ये सुनकर बादशाह की दिलचस्पी बढ़ गई। उसने सोचा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या ये बुजुर्ग वाकई मेरी नीयत का हाल जान सकते हैं? उसने फैसला कर लिया कि वह खुद इस बुजुर्ग से मुलाकात करेगा। बादशाह की आंखों में हैरानी झलक रही थी। वह सोच में पड़ गया, अगर वाकई ऐसा कोई दरवेश मौजूद है जिसके बारे में लोग अकीदत से बात करते हैं, तो क्यों न खुद जाकर उससे मुलाकात की जाए। चंद लम्हे सोचने के बाद बादशाह ने अपने खास शाही कासिद को बुलाया और हुक्म दिया, इस दरवेश तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। कहो कि बादशाह ए वक्त उनसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। कासिद शाही लिबास में मलबूस तेजी से महल से निकला और सीधा उस गांव पहुंचा जहां दरवेश का कयाम था। उसने निहायत अदब से बादशाह का पैगाम दिया, मगर दरवेश ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे दुनियावी हुक्मरानों से कोई गरज नहीं, मैं सिर्फ अपने रब का बंदा हूं और उसी के दर पर झुकता हूं। कासिद हैरान रह गया। ये जवाब लेकर जब वह महल वापस पहुंचा और बादशाह को सुना दिया तो दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह के चेहरे पर पहले हैरत उभरी और फिर वह गुस्से से सुर्ख हो गया। वह अपनी जगह से उठा और तेज लहजे में बोला, यह कैसे मुमकिन है कि कोई मेरे बुलाने पर हाजिर न हो? मैं इस सल्तनत का हुक्मरान हूं और मेरे हुक्म की नाफरमानी कोई नहीं कर सकता। बादशाह ने गुस्से से मुट्ठी बांध ली और सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, फौरन इस दरवेश को गिरफ्तार करके दरबार में पेश करो। जो मेरे हुक्म को न माने, मैं उसे सख्त सजा दूंगा। शाही सिपाहियों का दस्ता पूरी कुव्वत के साथ इस गांव की तरफ रवाना हुआ, मगर जब वे वहां पहुंचे तो हैरान रह गए। दरवेश का कोई नामो निशान न था। ऐसा लगा जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो या आसमान उन्हें उठा ले गया हो। गांव वालों ने बताया कि वह किसी को कुछ कहे बगैर खामोशी से कहीं चले गए। जब यह खबर बादशाह तक पहुंची तो वो मजीद गजबनाक हो गया। अब यह उसके वकार का सवाल बन चुका था। वह किसी की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने ऐलान किया, अब मैं खुद जाकर इस दरवेश को तलाश करूंगा, चाहे मुझे सल्तनत के हर घूशे में जाना पड़े। बादशाह ने अपने खास मुहाफिजों और वजीर के साथ घोड़े पर सवार होकर दरवेश की तलाश में निकलने का फैसला किया। दिन गुजरते रहे। बादशाह और उसके सिपाही हर तरफ तलाश करते रहे, मगर दरवेश का कोई सुराग न मिला। आखिरकार एक दिन बादशाह एक बुलंद पहाड़ी इलाके में पहुंचा। वहीं उसे एक नौजवान दिखाई दिया जो किसी काम से गुजर रहा था। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे मेरे पास लाओ। नौजवान को दरबार में लाया गया और बादशाह ने पूछा, क्या तुमने किसी दरवेश को यहां आते देखा है? नौजवान ने कहा, हां, इस इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक बुजुर्ग कयाम पजीर है। लोग कहते हैं कि उनकी दुआएं कबूल होती हैं और उनके पास सुकून मिलता है। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे पर एक अजीब खुशी उभरी। वह दिल ही दिल में मुतमीन हो गया कि आखिरकार उसने उस दरवेश को तलाश कर लिया। वह फौरन उस पहाड़ की जानिब बढ़ा जहां दरवेश के होने की इत्तिला मिली थी। रास्ता मुश्किल और चढ़ाई कठिन थी। गर्म सूरज के नीचे सफर की मशक्कत और प्यास की शिद्दत ने बादशाह को थका दिया, मगर जिद में आगे बढ़ता गया। आखिरकार
वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जहां एक दरवेश सादगी से बैठे थे। बादशाह ने उनके करीब जाकर कहा, मुझे पानी दो, मैं शिद्दत से प्यासा हूं। दरवेश ने बादशाह की आंखों में झांका, फिर मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और अपने करीब बिठाया। खामोशी से एक मिट्टी के मटके से पानी निकाला और बादशाह के सामने रख दिया। बादशाह ने जल्दी से पानी पिया, जैसे बरसों की प्यास बुझा रहा हो। दरवेश ने नरम लहजे में कहा, बादशाह सलामत, अगर दुनिया की बादशाहत में इतनी ताकत होती तो आज तुम खुद यहां मेरे पास पानी मांगने ना आते। ये अल्फाज बादशाह के दिल पर बिजली की तरह गिरे। वह खामोश हो गया, नजरें झुका लीं और पहली बार अपने घमंड को लरसता महसूस किया। बादशाह ने बुजुर्ग की तरफ देखा और अदब से कहा, क्या वाकई आप वही अल्लाह वाले हैं जिनकी दुआएं हमेशा कबूल होती हैं? बुजुर्ग ने नरमी से सर झुकाया। बादशाह ने आजिजी से दरख्वास्त की, मेरे लिए दुआ कीजिए। ये सुनते ही बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। बादशाह यह देखकर हैरत में पड़ गया। उसने ताज्जुब से पूछा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इसी लम्हे बुजुर्ग ने आहिस्ता से अपनी दाढ़ी को छुआ, फिर चेहरे से मसनूई दाढ़ी उतार दी। ये मंजर देखकर बादशाह दंग रह गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने सामने बैठे शख्स को घूर कर देखा और जैसे ही हकीकत आश्कार हुई, वह बेइख्तियार चीख उठा, यह ये तो वही मुसाफिर जैद है जो कुछ अरसा पहले मेरे दरबार में आया था। जैद ने मुस्कुराते हुए बादशाह की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत, आखिरकार मैंने आपको धोखा दे ही दिया। ये सुनते ही बादशाह सोच में पड़ गया। सिपाहियों ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा, मगर इससे भी ज्यादा हैरत खुद बादशाह को थी। फिर अचानक बादशाह ने एक बुलंद कहकहा लगाया और जैद के कंधे पर दोस्ती भरा हाथ रखा और कहा, जैद, तुम पहले शख्स हो जिसने मुझे बेवकूफ बनाया और मैं इस पर खुश हूं। फिर बादशाह ने अपने सर से शाही ताज उतारा और उसे जैद के हाथ में दे दिया। करीब खड़े लोग दम बखुद रह गए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि खजाने से 10,000 अशरफियां लाई जाएं और जैद को पेश की जाए। सिपाहियों ने अशरफियों की थैलियां जैद के सामने रख दी। जैद ने ताज को देखा, फिर बादशाह की तरफ देखकर मुअद्दब लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके हुस्न सलूक पर शुक्रगुजार हूं, मगर यह ताज आप ही के शायान शान है। मगर बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं जैद, तुमने साबित कर दिया कि दुनियावी रुतबे और ताकत के मुकाबले में अक्ल और दानिश ज्यादा अहम है। यह तुम्हारा इनाम है। ये सुनकर जैद ने ताज और अशरफियों की थैलियां कबूल कर लीं और बादशाह का शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गया। दरबार में मौजूद हर शख्स ने इस अनोखे वाक़े पर दाद दी और बादशाह भी मुस्कुराते हुए अपनी सल्तनत की तरफ लौट गया।